جی، میرا نام ہے ترین عظیمی اور میں الحمدللہ فیشن ڈیزائنر ہوں اور پاکستان کا سب سے پہلا ڈریس ڈیزائنر ہوں، برانڈ میکر ہوں، کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں۔ گارمنٹس کے جو بھی ادارے ہیں یا جو برانڈس ہیں یا جو ایکسپورٹر ہیں گارمنٹس سے متعلق، ان اداروں میں کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں۔ اور یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ دانش ترین وارڈروب کے نام سے ہم نے برانڈ لانچ کیا ہے۔ یہ میرے بیٹے کے نام سے ہے اور یہ میرے بیٹے کا ہی بزنس ہے اور اس بزنس پہ میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں اور الحمدللہ ہم بہت سکسیسفل ہیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم۔ ہم آپ سے آپ کے بزنس کے بارے میں اور آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ کوشچنس کریں گے۔ ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کریں۔ جی۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کیا، آپ کا اس کے پیچھے جرنی اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے والد صاحب کا اور میرا جو ہے وہ ایگریکلچر سے تعلق تھا، تو یہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں، تو الحمدللہ ان کی کوششوں سے میں پاکستان کا پہلا ڈریس ڈیزائنر ہوں۔ تو اس فیلڈ میں اس وجہ سے آیا ایگریکلچر سے اس فیلڈ میں۔ مقصد یہ تھا کہ بہتر صاف ستھرے ماحول میں کاروبار کرنا، کام کرنا، یہ مقصد تھا، اس وجہ سے میں اس بزنس میں ہے۔ تو آپ اپنی جرنی کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے یہ بزنس کیسے اسٹارٹ کیا؟ پہلے تو میں نے اس کام کو باقاعدہ پروفیشنل انداز میں سیکھا اور اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے نوکریاں بھی کی مختلف جگہوں پر۔ اچھا، مقصد شروع سے کاروبار کرنا تھا کہ کاروبار کرنا ہے، مگر جب کاروبار کا وقت آیا تو اس وقت حادثاتی طور پر ہم مالی طور پر بالکل مفلس ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ہاری، مقصد کاروبار کا تھا، تو بہت چھوٹی رقم سے، بہت چھوٹے پیمانے سے میں نے کاروبار شروع کیا اور 2 سال میں الحمدللہ پاکستان کا یا پاکستان میں ایکسکلوسیو ڈریسز، اس میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا کام میرا ہی تھا۔ آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ کیا تھی؟ مطلب اگر آپ نے جیسے بتایا کہ بہت شروع میں حالات خراب ہو گئے تھے، انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو وہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا وہ اتنی انویسٹمنٹ تھی کہ آپ اسٹارٹ کر سکتے تھے ایک بالکل نیا بزنس؟ میں بلکہ یہ بات بتا رہا ہوں جو ابھی تک شاید کسی کے علم میں نہیں ہے، میں جتنے چھوٹے پیمانے پر کام کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ سب سے چھوٹا پیمانہ تھا۔ اس پیمانے کے لیے 10,000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے پاس 500 روپے تھے، تو میں نے 500 روپے سے کچھ مشینیں بک کرائیں، خریدی نہیں۔ اس کے بعد باقی 9,500 روپے کا بندوبست میں نے بعد میں کیا اور کچھ لوگوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ادھار لے کر کے وہ جب پیسے 10,000 روپے ہو گئے تو میں نے اپنا کام شروع کیا۔ آپ نئے آنے والے اس فیلڈ میں جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیک نیتی ہو اور ایمانداری ہو۔ مقصد یہ ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کیونکہ کاروبار مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز بنا رہا ہے یا جو چیز وہ بیچ رہا ہے، ایک تو وہ چیز صحیح ہو، ایمانداری سے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہو۔ کاروبار کرنے والا شخص اور بادشاہت کرنے والا شخص، ان دونوں کے دماغ اور سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی تخت اور تختہ
जो लोग नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जो लोग नाकामी बर्दाश्त कर सकते हैं, वही कारोबार कर सकते हैं। जो लोग नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे मायूस हो जाते हैं, यानी कमज़ोर आसाब के लोग कारोबार नहीं कर सकते। और वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, मतलब ऐसे भी लोग मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिनकी तनख्वाहें $5 लाख हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन नौकरी करें, वो रिस्क नहीं ले सकते। जो रिस्क ले सकता है वो कारोबार कर सकता है, जो रिस्क ले सकता है वही बादशाह भी कर सकता है। तो आपका सबसे बड़ा जो है फेलियर कौन सा था? कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अब इससे ज़्यादा मतलब मेरा बिजनेस रन नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया वहाँ पर? ऐसे चैलेंज ज़िंदगी में कई बार आए, बहुत बार आए, एक दफ़ा नहीं। मतलब एक वक्त ऐसा था कि जब मैंने आपको बताया कि 500 रुपये से जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जी। तो वो बिज़नेस जब मैंने ख़त्म किया तो शायद मेरी उस वक्त जो कारोबार की स्ट्रेंथ थी वो 3-4 करोड़ रुपए में थी। तो मुल्की सतह पर कुछ इस किस्म के हालात पैदा हुए जिसकी वजह से वो बिज़नेस मेरा ख़त्म हुआ। और फिर मैं सिरे से शुरू किया, साल 2 साल स्टे करने के बाद, यानी हम रुके नहीं। और बिज़नेस नाकाम होने की ये तो वजह मैंने आपको बताई कि मुल्की सतह पर कुछ ऐसे बेईमान किस्म के इन्वेस्टमेंट आ गए थे जो शायद लोगों के इल्म में हो कि वो 10% और 15% मुनाफा दे रहे थे इन्वेस्टमेंट पे। तो वो एक्टिंग कारोबार कर रहे थे, यानी कारोबार की वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। अब जैसे 1000 रुपये की चीज़ है 500 रुपये की बेच रहे थे, तो इस तरह से बहुत सारे लोग फेल हुए। मगर वैसे फेल होने की जो वजह है कारोबार में, वो मेरे साथ भी ऐसे चीज़ें हुई या ऐसे हादसा हुए। एक तो ये कि जब तक मेरी अच्छी टीम थी और मैंने उस टीम की कदर की, उस वक्त तक मेरा कारोबार अच्छा चलता रहा। जब मैंने अपनी टीम की कदर नहीं की या टीम में मुझे मुखलिस लोग नहीं मिले तो मैं नाकाम हुआ। कामयाबी और नाकामी के पीछे आपकी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है कि अगर आपको मुखलिस लोग, नेक लोग, अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो आपके लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो फिर आपने उनकी कदर करनी है, दरगुजर भी करनी है। अच्छा, कोई इंसान जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। तो जो लोग 100% रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी काम में, अच्छा वो लोग भी कामयाब नहीं हो सकते। तो कुछ परसेंटेज होती है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे अंदर अच्छाई और बुराई है या हमारे अंदर खूबी और ख़ामी है, अगर हमारे अंदर जो है वो 51% खूबी है तो हम अच्छे इंसान हैं, और 51% अगर हमारे अंदर खामियां हैं तो हम बुरे इंसान हैं। ये फार्मूला है। अच्छा, यही हमारे मज़हब का फार्मूला है, यही कुरान का फार्मूला है, यही दुनिया का फार्मूला है कि आपकी अच्छाई बुराई से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यह है कि वो आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें, आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर बस ये एक फार्मूला है। हमें 100% कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकती अल्लाह की ज़ात के सिवा। तो एक अच्छी टीम, अच्छी सोच और अपने कस्टमर के बारे में मुखलिस होना कि जो चीज़ मैं इसे दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, इसके साथ बेईमानी नहीं कर रहा, चीटिंग नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें मिल करके इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपनी टीम मेंबर्स को, तो वो आप उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कि मैं जो रन कर रहा हूँ बिजनेस या अभी मुझे कुछ काम करने, तो उसके लिए मेंबर्स किन क्वालिटीज़ की बेस पे हायर करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, हमारे काम के साथ जितने भी लोग अटैच हैं वो अपने किसी न किसी काम के माहिर होते हैं, बिल्कुल यानी कारीगर होते हैं, मास्टर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। जी। यानी हमारे काम के साथ, जैसे हम गारमेंट्स का काम करते हैं, इसके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, एक कांच बनाने वाला है वो भी फनकार है, एक बटन लगाने वाला है वो भी फनकार है। हम ये क्वालिटी उनमें देख, ये चीज़ें तो हैं, सब में हैं।
हम ये देखते हैं कि ये शख्स वक्त का पाबंद है, क्या ये शख्स जो है सब चीज़ों पर अपने काम को तरजीह दे रहा है, अपने काम को शौक़ से कर रहा है, यानी उसके अपने अंदर शौक़ होना चाहिए काम का। अच्छा, जिन लोगों में शौक़ होता है, मतलब मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लड़के आए या काम करने वाले आए जो हेल्पर की पोस्ट पर आए और 2 साल के बाद मेरी फैक्ट्री में मैनेजर थे। अच्छा, वो अपनी शौक़ की वजह से, नेक नियति की वजह से। तो आपकी टीम के अंदर जो है, हमें अपनी टीम में ये देखना पड़ता है कि वो कितना भी अच्छा, कितना भी काबिल आदमी है, अगर वो अपने काम के साथ सिंसियर है तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, अपने लिए भी और अपने मालिक के लिए भी। अगर वो सिंसियर होना ज़रूरी है, चाहे एक बिल्कुल आप लो लेवल का काम करें, एक चाय भी बनाने वाला अगर आपने नौकर रखा हुआ है तो उसका सिंसियर होना ज़रूरी है। उसे हर वक्त हर दफ़ा ये सोचता है कि मुझे इससे अच्छी चाय बनानी है। जी बिल्कुल। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो यही बिजनेस और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे उसी जगह पर, तो ये वहाँ पे आपने इस कंपटीशन को कैसे हैंडल किया? क्या मतलब यूनिक आइडियाज़ थे जिनके साथ आप आए मार्केट में? देखिए, मैंने जिस ज़माने में ये बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक्त इस बिज़नेस को इस स्टैंडर्ड में कोई स्टार्ट करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेरे पास पाकिस्तान में रेडीमेड गरीब लोग पहनते थे। आज भी रेडीमेड का जब हम नाम लेते हैं तो उसकी वैल्यू, जैसे अगर किसकी बुराई भी करते हैं, तुमने रेडीमेड सूट पहना हुआ है, तो रेडीमेड को यहाँ समझ लीजिए कि सिर्फ गरीबों के लिए बनते थे कपड़े। तो मैं और मेरे साथ और भी टीम थी, हमने मिलकर ये सोचा कि हम अमीरों के लिए कपड़े बनाएंगे, सिर्फ अमीरों के लिए, जो पाकिस्तान के बाहैसियत लोग हैं, हम उनके लिए अपना एक ब्रांड लॉन्च करेंगे। वो हमने ब्रांड लॉन्च किया उस हाई स्टैंडर्ड में, उस वक्त कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता था, पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा था उस स्टैंडर्ड में काम। उस स्टैंडर्ड में हमने काम किया और हमारे जो ब्रांड्स का नाम था उस वक्त वो टीजेस था, और वो हमेशा पाकिस्तान में फादर फाउंडर रहेगा। तो आप तो स्टार्ट किया, अच्छा उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आई, नाकामियाँ हुई, लेकिन हम मुस्तकिल मिजाजी से करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे साथ मुंसलिक हो गई। पाकिस्तान में एक ही टीवी चैनल था, PTV, वो भी हमारे साथ मुंसलिक हो गया। और तकरीबन जहाँ हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग रहते हैं, जिन ममालिक में, यूरोप में भी, उन ममालिक में भी हमारे शोरूम थे। फिर हमने मतलब इंटरनेशनल तरक्की की, और फिर वो आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका बहुत हाई लेवल पर, तो फिर हम सब अलग अलग हो गए। अच्छा, कोई आप अपनी जर्नी का ऐसा पॉइंट जो नए आने वाले हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट को एक्वायर करें और कौन से पॉइंट से दूर रहें जो बिजनेस के स्टार्ट करें? देखिए, बिजनेस में मैंने आपको बताया कि एक तो मुस्तकिल मिजाज, अच्छा आपकी जो प्लानिंग है वो सही होनी चाहिए। आपके पास अगर, बल्कि मैं इस तरह से मिसाल देता हूँ कि एक नहर होती है, उससे बड़ा दरिया होता है, उससे बड़ा समंदर है, ये 3 है पानी के ज़राए जिसमें आप अपनी कश्ती तैरा सकते हैं। तो अगर आपकी कश्ती नहर के काबिल है तो आप उतनी छोटी कश्ती नहर में ही चलाएं, उसे दरिया में लाने की कोशिश ना करें। जब आप इस काबिल हो जाएं कि दरिया की मौजों से मुकाबला करने वाली कश्ती आप बना सकते हैं, तो फिर वो दरिया में चलाएं। अगर आप नहर की कश्ती दरिया में चलाएंगे तो वो बहुत जल्दी डूब जाएगी, और दरिया में चलाने वाली कश्ती अगर आप समंदर में लेकर आएंगे तो वो भी बहुत जल्दी डूब जाएगी। तो आप किस सतह का कारोबार करना चाहते हैं, तो आप उस सतह के दायरे में रहकर काम करें। मसलन एक समोसे बेचने वाला है और वो सोच रहा है कि मैं सुबह से शाम तक समोसे बेचूंगा, तो वो 1000 समोसे बना ले, तो 1000 समोसे प्रैक्टिकली वो नहीं बेच सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो वो पहले तो ये तय करे कि भाई मैं सारा दिन घूम घाम के 8 घंटे में मेहनत करूंगा, मैं 10 समोसे बेच सकता हूँ या 100 समोसे बेच सकता हूँ, तो वो 100 समोसे ही बनाए, बल्कि शुरू में वो 25 बनाए, अगर वो बिक जाते हैं तो फिर 50 बनते हैं। तो इसी तरह से कारोबार जो है उसमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी प्लानिंग हो,
جی اور اس کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کاروبار کا کسی حد تک ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی یعنی آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے. ہوں آپ جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے کیا اخراجات ہیں, جی کیا آمدنی ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں ہوں. پھر جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اب یہ میں بہت چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں 10,000 سے کاروبار شروع کروں جی تو اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہونا چاہیے. پھر وہ 10 لاکھ روپے سے کاروبار اسٹارٹ کرے تھے. اگر وہ 10 لاکھ روپے ڈوب جائیں تو پھر اس کے پیچھے 10 لاکھ ہوں تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سروائیو کر جاتا ہے. جی. آخر میں آپ کو میسیج دینا چاہیے؟ بس میسج یہی ہے کہ کاروبار سب سے اچھی بات ہے کرنا, اور بہتر ہے کہ انسان نوکری کرے, کسی کے پاس غلامی کرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا خود کاروبار کرے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. موسٹ ویلکم.